नमस्कार मित्रों, आई एम प्रमोद सिरपीडियन फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आपकी और हमारी सीखने सिखाने की यात्रा लगातार चलती रहेगी और आप भी इस यात्रा में हमेशा एक सही यात्री की भांति चलते रहेंगे। तो जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, है ना। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, मित्रों जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हम आसमान का कद क्यों देखें? क्योंकि हमने हौसला जो है बना लिया है ऊंची उड़ान का। दिल में जज्बात बड़े बड़े हैं, अरमान बड़े बड़े हैं, इरादे बड़े बड़े हैं, सोच बड़ा बड़ा है और कार्य बहुत बड़ा बड़ा है। हमें करना ही है, हमें सीखना ही है, हमें बोलना ही है, हमें समझना ही है, हमें लिखना ही है, हमें पढ़ना ही है और ये प्रूव करना है कि आई एम नॉट वीक इन इंग्लिश, आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी इंग्लिश लर्नर टू प्रैक्टिस ए हार्ड एंड टू लर्न ए पैटर्न एवरी डे, है ना। Learning a pattern every day will be helpful. So every learner should learn at least one pattern every day. This will be very precious for that learner. So you are a learner and you are a traveler of English language, and your destination is learning English. So you should concentrate on pattern, any pattern, a beautiful pattern every day, and your concentration will make you strong and make you able to speak, learn and understand English. That will be your result of practice. So today I am going to describe you, explain you a very beautiful pattern, very speakable pattern, है ना। That pattern will be a good part of English spoken English. So watch and try to understand. Today's pattern is spoken English pattern number 79. Spoken English pattern number 79, and in the habit of are habituated to, है ना। The habit of, in the habit of और habituated to, नेकी आदत होना, नेकी आदत होना। मुझे व्यायाम करने की आदत है। I am in the habit of taking exercise. I have the habit of taking exercise and I am habituated to take exercise, है ना। भारत को जीतने की आदत है। India is in the practice of winning. India is in the habit of winning. India is in the habit of winning. India has the habit of winning. India is habituated to win, है ना। तो it will be your habit, है ना। I have many habits. Everyone has habit. So concentrate the pattern. In the habit of, है ना, subject plus is rm, है ना। Subject plus is rm in the habit of verb for object. Subject plus is rm in the habit of verb for object, or subject plus has you have according to subject the habit of verb for object, and subject plus is rm habituated to verb 1 plus object. उसे गाने की आदत है। He is in the habit of singing, है ना। He has the habit of singing and he is habituated to singing, habituated to sing. आपको पढ़ाने की आदत है। You are in the habit of teaching. You have the habit of teaching. You are habituated to teach. उसे अंग्रेजी बोलने की आदत है। He is in the habit of speaking English. He has the habit of speaking English and he is habituated to speak English. उसे हिसाब बनाने की आदत है। तो he is in the habit of solving a sum. He has the habit of solving a sum and he is habituated to solve the sum, है ना। इस तरह से बहुत सारे वाक्य उसे टहलने की आदत है। तो he is in the habit of walking. He has the habit of walking. He is habituated to walk, है ना। आपको तर्क करने की आदत है। You are in the habit of arguing, है ना। You have the habit of arguing and you are habituated to argue,
है ना। उसे नाचने की आदत है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, ही हैज़ द हैबिट ऑफ डांसिंग एंड ही इज़ हैबिचुएटेड टू डांस। उन्हें पूजा करने की आदत है, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ वर्शिपिंग, दे हैव द हैबिट ऑफ वर्शिपिंग एंड दे आर हैबिचुएटेड टू वर्शिप, है ना। हम लोगों को प्रार्थना करने की आदत है, तो वी आर इन द हैबिट ऑफ प्रेइंग, वी हैव द हैबिट ऑफ प्रेइंग एंड वी आर हैबिचुएटेड टू प्रे, है ना। उसे दुकान चलाने की आदत है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ मैनेजिंग द शॉप, ही हैज़ द हैबिट ऑफ मैनेजिंग द शॉप एंड ही इज हैबिचुएटेड टू मैनेज द शॉप। तो इस तरह से बहुत सारे आपका जो अपना सेंटेंस होगा, जो बोलने के समय आपके जवाब पर, आपके जुबान पर जो वाक्य आ जाता होगा, तो आप इस पैटर्न पर तीनों में से किसी पैटर्न का सहारा लेकर वैसे वाक्यों को आप स्पोकन का हिस्सा बना सकते हैं, है ना। बस इंग्लिश का डर नहीं सताना चाहिए, है ना। इंग्लिश का कदकाठी नहीं देखना है। जब हमने उड़ान भरने का संकल्प ले लिया है, जब हमने बोलने का संकल्प ले लिया है, तो इंग्लिश की लंबाई चौड़ाई, इंग्लिश का हिस्ट्री और इंग्लिश का प्रेजेंट नहीं देखना है। बस इंग्लिश बोलना है ना। और बोलने के लिए हमेशा रेडी रहना है, एनर्जी में रहना है। और यह एनर्जी जो है कमना नहीं चाहिए, और एक दिन यह एनर्जी आपके इंग्लिश को निश्चित रूप से एक शेप प्रदान करेगी, निश्चित रूप से एक मुकाम देगी, और आप एक सफल वक्ता हो सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ और इसी वीडियो के साथ, मतलब इसी वीडियो के साथ, आज के इसी वीडियो की संपन्नता के साथ मैं आज का वीडियो संपन्न करता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।